Training Officer Dinesh Kumar, Shivaji Company. I am here to present our theme, that is Youth Action Plan towards Energy Conservation. May I have your permission to start my briefing, sir? Start. I would like to start my briefing with the famous quote of Mahatma Gandhi, that is, Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. Energy. Energy is something which is basic and very essential for our life. We can't think our life without energy. There are two types of energy resources, that are conventional and non-conventional sources of energy. The non-conventional energy resources are renewable, but the conventional are not. As our demand for energy in the form of electricity and fuel is increasing day by day, and to meet this demand, we are using conventional energy resources. Conventional energy resources are limited and take centuries to regenerate, so there is a risk of their depletion. Youth can play a very important role to save these resources, so we must not be late to put our efforts towards it. As we have been talking and thinking about conservation of energy, but the current scenario in the world not yet reached at the level of our thinking. Global warming is another current crisis of the current scenario, which is due to the excess usage of fossil fuels. The burning of fossil fuel causes the emission of harmful gases, which results in different type of pollutions and decaying of the ozone layer. Due to the excess uses of fuel and other sort of energy, we have to extract much resources as well as fossil fuel, which is resulting in excess wastage disposal, leads to the several type of pollution and destruction to the environmental health. Electricity generated by fossil fuels and conventional energy resources is at the rise, which demand new power plants, leading to the water scarcity. There are many ways to get rid of these crises, which are shown in this ground layout, about which chess number 202 will brief in detail. Nowadays, transportation seems to be a major portion where the changes can be made for visible differences. Instead of using own vehicle, people can use other means of transportation like buses, railways, metros, or carpooling to save the fuel. Switching to alternative source of energy can also be adapted. दीपक कुमार, शिवाजी कोई थीम ब्रीफिंग शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। शुरू कीजिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति के इस श्लोक के अनुसार सनातन रूप से ही भारत में नारी को एक देवी का दर्जा दिया गया और उसे पूज्य तुल्य माना गया, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर रही है। देश के सभी क्षेत्र, चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक, आर्थिक हो या तकनीकी क्षेत्र या खेल के क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता रहा है। महिला और पुरुषों के बीच पाए जाने वाले इसी भेदभाव को लैंगिक भेदभाव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक है और समाज के दो महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन वास्तव में महिला रूपी स्तंभ को लैंगिक भेदभाव खोखला करता जा रहा है। हाल ही में प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट लैंगिक वैश्विक अंतराल सूचकांक 2021 के अनुसार 153 देशों की सूची में भारत का स्थान 140वां रहा, जो ये बताता है कि भारत में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हो चुकी है। आखिरकार लैंगिक भेदभाव की शुरुआत होती कहाँ से? वास्तव में लैंगिक भेदभाव की शुरुआत स्त्री के गर्भ से ही हो जाती है। परिवार में लड़के की चाह की कामना करना और लड़की न होने की प्रार्थना करना, ये भेदभाव का प्रथम संकेत है। जन्म के बाद लड़की को आर्थिक सुविधाओं से वंचित कर देना और लड़कों को आर्थिक सुविधा से परिपूर्ण कर देना, ये भी भेदभाव का गोत है। शैक्षणिक स्तर पर लड़कियों को शिक्षा प्रदान न करना, इस सोच के साथ कि लड़की तो पराया धन है, एक दिन वह दूसरे घर चली जाएगी, यह भी हमारी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। विडंबना की बात है, आज़ादी के बाद भी आज महिला साक्षरता 65% पर ही पहुंच पाई है, जबकि पुरुष साक्षरता 82% को पार कर चुकी है। लैंगिक भेदभाव के मुख्य कारण क्या है? इसका सबसे प्रमुख कारण रहा है भारतीय समाज की रूढ़िवादी सोच, दूसरा दहेज प्रथा, तीसरा शिक्षा का अभाव, चौथा आर्थिक तंगी। लैंगिक भेदभाव को समाप्त कैसे किया जा सकता है?
सर्वप्रथम हमें हमारे समाज में व्याप्त जघन्य सोच को मिटाना होगा कि स्त्री और पुरुष में कभी समानता नहीं होती है और स्त्री पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती है। दूसरा, हमें दहेज प्रथा के कानूनों को मजबूती से क्रियान्वित करना होगा। तीसरा, शिक्षा का प्रसार जन जन तक करना होगा। चौथा, केंद्र और राज्य सरकार की महिला कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होगा। निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि स्त्री और पुरुष एक ही साइकिल के वो दो पहिए हैं जिनमें से अगर एक पहिया भी कार्य करना बंद कर दे तो जीवन रूपी सामाजिक व्यवस्था चल ही नहीं पाएगी। अतः इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए हमें शुरुआत अपने परिवार से करनी होगी और हमारी सोच को बदलना होगा। जब ऐसा होगा तो यकीन मानिए प्रत्येक घर से तैसी थॉमस, मिताली राज, इंदिरा नूई, चंद्रा कोचर और वीपी सिंधु जैसी उत्कृष्ट महिला